Hi everyone, so welcome to today's video and this is February 9th, 2022. So we are starting with the Hindu discussion, catering the needs of the prelims and the main stages of the examination. In case you are new to the channel, please do like, comment, share and subscribe to the channel. You can just hit on the icon that you are seeing on the screen with my logo and you will be able to subscribe then and there. If these sessions are helpful to you, if you are finding them relevant from the perspective of the examination, please do leave your feedback in the comment section so that I'm aware about how we are proceeding with the content. You have got the links of the playlists which is catering to January and February month, of course 2022, and a Telegram channel link right there in the description and the comment section. So let's continue. February 9th. All the earlier videos from 1st to 8th February are already there on the channel. You have the separate playlist for the same. आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है नया. The things that we have been seeing in the previous sessions are kind of being repeated. तो वो एक follow up की तरह ही है. So you can just check like that. एक न्यूज़ आ रही है आपकी restoration of the 27% OBC quota. Says the Maharashtra panel. इसको उन्होंने बाद में explain करा है. I mean थोड़ा detail दिया हुआ है. But we have already done this. We have talked about that as such हमें state specific नहीं जाना है किसी भी reservation के sense में. लेकिन overall what is this whole idea about the OBC reservation? कौन से case से related था, कब हुआ? That is what I have discussed in the earlier video. Here they have also talked about Maharashtra State Backward Class Commission. So basically ये तो state का commission है, ठीक है, state का backward class commission, but आपका national level पे भी you have NCBC also the national level पे the backward commission. तो आई वुड से कि वो आप वहाँ से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जैसे नेशनल कमीशन फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस NCBC. उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब के लिए भी होते हैं, उस पर भी मैं पहले बात कर चुकी हैं. ऑल द नेशनल कमीशंस यू शुड नो अबाउट. आपको लक्ष्मीकांत में उसका स्टैटिक मिल जाएगा, सो दैट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सच कमीशंस एंड देन काइंड ऑफ द सेम थिंग यू कैन टॉक अबाउट द स्टेट कमीशंस ऑल्सो. Another news is Bihar plans the census of those who quit drinking. ये फिर इन्होंने थोड़ा elaborate करा है later, but just get the crux of the news. See, we don't have to get into the detail because it is state specific, but such kind of news can be used as an example. GS2 में governance के section में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ छोटी सी जो है वो क्या कह रही है that in Bihar the नीतीश कुमार government has decided to conduct a census, यानी वो डॉक्यूमेंट करेंगे इस चीज़ को, डेटा enumeration होगा of those who have given up drinking since Bihar became a dry state. आपको पता है that's a dry state, liquor is not allowed. अब वहाँ पर कितने लोगों ने ड्रिंकिंग गिव अप कर दिया, ठीक है, उसका जब ये डेटा इन्यूमरेट करेंगे तो वो क्या होगा, एक अवेयरनेस के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, आपको आगे भी पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल रहेगी, बहुत सारी चीज़ों में दैट विल बी हेल्पफुल. सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे विल डू दिस एक्सरसाइज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दोज हु हैव गिवन अप द हैबिट. तो आप इसको एज अ एग्जाम्पल इन द गवर्नेंस सेक्शन यूज़ कर सकते हैं. हियर अनदर न्यूज़ इज़ स्टेट स्पेसिफिक ओनली, लेकिन मुद्दा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको फ्रंट पेज पे ये चीज़ दी जा रही है. इट्स नॉट अ स्मॉल न्यूज़. सो हरियाणा कैबिनेट नॉट फॉर द एंटी कन्वर्जन बिल. अब ये क्या है? सो दे हैव अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल. रिलीजन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट दिस सेज, it seeks to prohibit the religious conversion effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, or by any fraudulent means, or by marriage or for marriage, by making it an offense. मतलब किसी भी तरीके से, ठीक है, ज़बरदस्ती में religious conversions करवाना, जो कि उसको एक offense का दर्जा अब दे दिया जाएगा. एंड ड्राफ्ट बिल ये कहती है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, मतलब किस पर वो बर्डन डाला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है, दैट विल लाई ऑन द अक्यूज्ड, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि इसने ज़बरदस्ती करी मेरे को रिलीजियसली कन्वर्ट कराने के लिए, उसको प्रूफ करना होगा कि नो द पर्सन इज़ इनोसेंट, ठीक है, एंड नॉट गिल्टी. तो खैर बाकी चीज़ें बिल से रिलेटेड आप पढ़ लेंगे बिकॉज द इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे यहाँ पे भी इन्होंने उसका पूरा अपना एक टाइमलाइन दिया है कि हाउ थिंग्स हैव प्रोसीडेड, यू कैन डू दैट. ऑल्दो इट इज़ स्टेट स्पेसिफिक, लेकिन बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ रिलीजियस conversion and because of the religion itself, the matter is of prime significance and you can use it at different places. आप सोसाइटी में, आप राइट्स के सेंस में, आप गवर्नेंस में,
अब रिलीजन वाले मुद्दों में आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड जैसे जैसे फिर ये न्यूज़ डेवलप करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको फॉलो अप हम लेते रहेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ कैबिनेट हैज़ नॉट फॉर द एंटी कन्वर्जन बिल, उन्होंने अप्रूव किया है ड्राफ्ट को, फिर आगे कैसे क्या होता है वो सब आप प्रोसेस में देखेंगे। यहाँ जैसे है द रेटिंग फर्म्स हैव डबल स्टैंडर्ड्स, इन्होंने बस बात ये हो रहा है कि द ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज इन्होंने टर्म करा है दैट इंडिया इज़ द मोस्ट इंडेटेड इमर्जिंग मार्केट एंड क्लेमिंग दैट द यूनियन बजट लैक्ड द क्लैरिटी ऑन द फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान्स। खैर ये सब अपने जगह है कि स्टेटमेंट जो रेटिंग्स फर्म्स होते हैं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही होता है रेट करना, उन्होंने क्या बोला और किस बेसिस पे बोला, बट वो जानने के अलावा यू विल जस्ट रीड रीड द न्यूज़ एंड देन यू कैन लेट इट गो। बट यहाँ से जो कीवर्ड आपको करने हैं, जो कि मैं हमेशा आपको मार्क करवाती हूँ फॉर योर GS3 इकोनॉमी पोर्शन, जो कीवर्ड्स आपको फोकस करने हैं, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू गेट द कीवर्ड, क्या है वो, दैट इज़ डेट टू GDP रेशियो। तो अब ये आपके स्टार्टिंग में अगर यहाँ से नहीं समझ आता है तो आपको लिख के रख लेना चाहिए, दैट सेपरेटली यू विल प्रिपेयर इट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड में एज सच कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, बट अगेन बिकॉज वी फोकस ऑन द कीवर्ड्स ऑल्सो। सो यहाँ पर बात हो रही है कि जो JNU की टीचर्स एसोसिएशन है, JNUTA, asks the new vice chancellor to restore the sanctity of the statutory bodies। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है statutory bodies, कि statutory bodies जो हैं वो क्या होती हैं। जैसे आपके पास constitutional bodies होती हैं, वैसी bodies जिनका जिक्र constitution में है, ठीक है, which have been formed because of the constitutional acts। There are certain non-constitutional bodies, ठीक है, which are not formed because of the constitutional acts। Now, within those non-constitutional bodies, there are multiple kinds of bodies, ठीक है, उसमें बहुत तरह की bodies हो सकती हैं, जिसमें से एक तरह की body होती है statutory bodies। Statutory bodies मतलब the bodies which are formed because of an statute, या statute मतलब law, जो law की वजह से बनी हुई bodies हैं, ठीक है, लेकिन constitution में नहीं है। अब इस तरीके की कैसे एग्जाम्पल ऑफ बॉडीज़ होती हैं, यू हैव द होल सेक्शन इन लक्ष्मीकांत ऑल्सो जब आप स्टैटिक करोगे तो, बट अदरवाइज एज अ जनरल सेक्शन आपको ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए। द रीज़न बीइंग दैट इन योर GS2 मेंस सिलेबस you have a section on the statutory bodies also, constitutional, non-constitutional, statutory, regulatory, बहुत तरह की bodies उसमें जिक्र है, वहाँ पर इसका already mention है। जैसा मैंने बोला आज कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो पेज 6 पे आ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बस ऐसे दिया हुआ है, आप टॉकिंग अबाउट द लिग्यूम, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स स्पेशली प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए लिग्यूम क्या होते हैं, आप बस सर्च करिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इट्स प्रीटी ईजियर टू अंडरस्टैंड। क्रॉप्स एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में वो आ जाएगा। Now this is a very important news from your GS1 perspective also, GS2 perspective also। GS1 में सोसाइटी के सेंस में ये काम आ जाएगा इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स में जब हम पढ़ते हैं, और GS2 में वल्नरेबल सेक्शंस भी पढ़ते हैं, प्लस हम एनी काइंड ऑफ एक्ट्स, लेजिस्लेशंस वगैरह भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों सेंस में काम आ रहा है। क्यों? द न्यूज़ सेज अ वैलेंटाइन डे वेडिंग बियॉन्ड द जेंडर बैरियर्स। ये कुछ नॉर्मल न्यूज़ होता तो एक तो उसको वो कवर नहीं कर रहे होते और हम भी उसको कवर नहीं कर रहे होते। सो हियर इट सेज दैट द ट्रांस कपल प्लान टू रजिस्टर द मैरिज अंडर देयर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी। देखिए इस चीज़ को समझिएगा। सो देयर वाज दिस एक्ट विच हैड कम, दिस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इसीलिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इस एक्ट का सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। ऑफकोर्स इट इज़ फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ताकि हम उनको एट पार रख सकें विद द पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। ठीक है, वाई टू हैव दैट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी व्हेन वी आर बिकमिंग अ सोसाइटी विच इज़ ओपन टू एवरी काइंड ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज़, जो कि अभी तक लोगों को एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप चीज़ें लगती थी। अब नाउ वी आर ओपन टू द सोसाइटी। सो इन दैट सेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप्स द गवर्नमेंट कम्स अप विद सेवरल लेट्स से एट टाइम स्कीम्स और लेजिस्लेशंस। तो यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल ऑफ एक्ट है। अब इस केस में क्या है, दीज टू पीपल दे आर रजिस्टरिंग देयर मैरिज। The day of course is not important but they have given it. So registering under their transgender identity, और ये क्या हो रहा है according to them, this is the first time that this is happening. This will be a first, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसी आइडेंटिटी के अंदर and not telling कि either they are a male or a female but they are accepting their transgender identity, और उसके अंडर वो अपना मैरिज रजिस्टर करवा रहे हैं। Also you can study about what are the provisions of the special marriage act, ठीक है, एंड उन्होंने अपनी आइडेंटिटी
रखी है एज ट्रांसजेंडर ओनली इन द ट्रांसजेंडर ID कार्ड ऑफ द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा मिनिस्ट्री और कौन सा डिपार्टमेंट है जो हेल्प करता है लोगों को। तो इस तरीके के केस में आपको मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स का भी नॉलेज है। अब यहाँ पर आपने एक्ट, 2 तरह के एक्ट भी कर लिए, एंड देन ऑफकोर्स यू कैन यूज़ इट एनी टाइम एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। नेक्स्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एडिटोरियल्स वी आर स्किपिंग फॉर द टाइम बीइंग। ये सेम ही FCRA को लेके जो पहले भी चल रहा होता था, इट्स जस्ट दैट वहाँ पर NGOs के केस में था, यहाँ पर दे हैव सेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ रिन्यूड द FCRA विच इज़ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया विच इज़ अ पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए इस ग्रुप के बारे में कि एक एग्जाम्पल की तरह आपने देख लिया, और बाकी इन्होंने FCRA उसका रिन्यू कर दिया है। तो FCRA क्या है उससे रिलेटेड मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। NGO और ये सब रजिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें हम बहुत टाइम से, वी हैव डन इट लाइक n नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी, तो देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट। ये तो वो और कुछ इसमें नया है नहीं। दिस इज़ जस्ट अबाउट द स्टेट असेंबली पोल्स, सो नॉट नीडेड फॉर अस हियर ऑल्सो। ओके, the panel questions the budget quota for MG Narega. MG Narega was in the news for several reasons in the past few days, and we have seen explainer also coming in the Hindu. There was kind of good detailed discussion there, so you can check it from there. If you have been regular with the sessions, you will not face much problem with that. And regarding the follow-up news जो भी उससे related आ रही होती है, just आप उसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आप बोला ना कि a week after that the scheme have received a budget allocation 20% lower than the previous year's revised estimate। तो जाहिर सी बात है कि बजट में कम चूँकि अलॉटमेंट हुआ है, इसीलिए इस तरीके का इशू निकल करके सामने आ रहा है। बाकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, अब मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है दैट इन द स्टैटिक पोर्शन यू हैव टू डू द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड द कैबिनेट कमिटीज़, एंड दैट ऑफ कोर्स यू विल डू फ्रॉम लक्ष्मीकांत, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। भीमा कोरेगांव, द फोन्स टू बी सेंट टू द पेगासस कमिटी, ये मैं आपको इस पे तो बहुत बार बात कर चुकी हूँ। भीमा कोरेगांव एज एन इशू भी आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द जनवरी मंथ। तो अगर जिन लोगों ने जनवरी वाले सेशंस देखे होंगे, आपको इसको हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से कैसे कवर करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। NIA एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। तो इसमें ओवरऑल न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं था जो कि आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत है। द सेम रशिया यूक्रेन इशूज़, ठीक है, यूक्रेन क्राइसिस एट्सेट्रा वही चीज़ का फॉलोअप है, जस्ट पढ़ लेंगे। ये देखिए, द न्यूज़ सेज, इसी पेज में थोड़ा जो है ना, थोड़ा है भी वर्ल्ड वाले में, बाकी तो अभी तक इट वॉज वेरी लेस। The European Union joins the chips race with 43 billion euro bid to rival Asia। हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुपिंग या एज अ ब्लॉक जो है वो बात कर रही है, तो इन्होंने ये जो चिप्स रेस की बात हो रही है वो किस चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट दी सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, अब सप्लाई ऑफ सेमी कंडक्टर्स की बात हो रही है इन यूरोप बाई 2030। क्यों? बिकॉज अभी जो इनकी डिपेंडेंस है, ठीक है, वॉट दे आर टेलिंग दैट दे आर पुटिंग इन एन एफर्ट टू लिमिट द ब्लॉक्स डिपेंडेंस। ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर ब्लॉक इज रेफरिंग टू द यूरोपियन यूनियन ऑन एशिया फॉर अ की कॉम्पोनेंट यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक कार्स एंड द स्मार्टफोन्स। तो जो सेमी कंडक्टर्स चिप्स जो हैं उसकी जो यूजेज है इन दी इलेक्ट्रिक कार्स एंड द स्मार्टफोन्स, उसके लिए अभी जो इनकी डिपेंडेंस है एशिया के ऊपर, उसको लिमिट करने के लिए ये खुद ही ज़्यादा सप्लाई करने के लिए प्लान बना रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लेटर व्हेन यू विल रीड द न्यूज़ ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है इस केस में, मतलब क्यों हम इस पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल रिलेशंस का एक की फैक्टर हो जाएगा कि किन कंट्रीज़ के बीच में इस चीज़ को लेकर के अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं और कौन किस पर से अपना डिपेंडेंस घटा रहा है। बाकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सो दे टेक्स प्लेस इन Taiwan, China and South Korea, and the European Union wants the factories and the companies inside the bloc to take on a bigger role now। ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो कहाँ हो रहा है, आपका एशियन साइड ज़्यादा रह रहा है, तो उनको डिपेंडेंस उनकी बढ़ जा रही है। ये तो वही है सेम चीज़ जो अभी तक चल रहा था फॉलोअप में बाइलैटरल रिलेशंस में। सो दैट विल फिगर आउट इन योर GS2 IR में इंडिया और श्रीलंका को लेके। ठीक है, उसी पे आप आगे पढ़ते जाएंगे। कुछ अच्छा पॉइंट अगर मिलता है तो नोट करेंगे, वरना पढ़ के रहने देंगे, क्योंकि जितना कंटेंट अभी तक जमा हो गया होगा जैसे ये न्यूज़ बिल्डअप हो रही है, वो दैट इज़ मोर देन इनफ। श्रीलंका टू लॉन्च इट्स ओन आधार, ये ऑल्दो इट इज़ जस्ट अबाउट श्रीलंका,
ठीक है, एक सेपरेट कंट्री को लेकर के है। लेकिन अगर आप उसका नेक्स्ट देखते हो तो इट सेज दैट इंडिया अग्रीज टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू इम्प्लीमेंट द डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो फिर इंडिया रिलेट हो जा रहा है ना, इसीलिए हम इसको जानेंगे, पढ़ेंगे। अदरवाइज ऑल्सो आपको पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि पता होने में एग्जाम्पल्स यूज़ करना आसान हो जाता है, बट हियर तो एनी वेज इट्स बीइंग यूज्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम इसको बिल्कुल पढ़ेंगे। फिर वो क्या प्रोग्राम है, किस चीज़ को लेकर इन्होंने बात करा, कैसे बायलैटरल टॉक्स रह रहे हैं, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है क्या, बिकॉज दैट इज़ मॉडल्ड ऑन द आधार कार्ड। ये सब चीज़ हम फिगर आउट करेंगे। जैसे इन्होंने बोला ना, सिमिलर इलेक्ट्रिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के प्राइवेसी का ध्यान कैसे रखना है, इंडिया कैसे हेल्प करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ देखेंगे। ताइवान मिसाइल को लेके है, यूएस अप्रूव दी अपग्रेड फॉर द ताइवान मिसाइल। मैंने सब आपको लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताया है, अभी उसमें और कुछ नहीं है। 13 मिलियन फेस सीवियर हंगर इन अफ्रीका, यूनाइटेड नेशंस। ये अगेन क्योंकि यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उससे रिलेटेड इन्होंने न्यूज़ दी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एज एन एजेंसी ऑल्सो यूएन सेपरेटली यू हैव टू प्रिपेयर एंड देन व्हाट दिस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़, एंड देन उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर उन्होंने यूज़ करा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इफ़ समबडी इज़ नॉट नोइंग व्हाट इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यू शुड बी क्यूरियस। ठीक है, आपने उसे पढ़ लिया और आपने छोड़ दिया तो इट विल नॉट मेक सेंस, क्योंकि अगर उनको सिर्फ अफ्रीका लिखना होता तो दे कुड हैव रिटन ओनली अफ्रीका ऑल्सो। वाई हैव दे मैंशनड द टर्म हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो वो कौन सा रीजन है अफ्रीका में, आप एक बार इसको सर्च करिए और मैप में फिगर आउट करिए। ठीक है, बिल्कुल इसमें आप पॉइंटेड वाला जो रीजन है अफ्रीका में, अगर आपको अफ्रीका का लोकेशन और मैप पता है ओवरऑल कॉन्टिनेंट का, तो आपको कुछ कंट्रीज़ मिलेंगी जो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा होती हैं। जस्ट टू रीड इट फ्रॉम देयर एंड योर सेपरेट मैपिंग विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। दिस इज़ हाउ यू डू योर मैपिंग एक्सरसाइजेस। इकोनॉमी बिजनेस में आएंगे। इंडियाज़ डेट टू जीडीपी बेटर दैन ऑफ यूएस ऑफिशियल्स रिपोर्ट। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, फर्स्ट पेज पे भी ये डेट टू जीडीपी रेशियो की बात हुई थी, वहीं से वो चीज़ ओवर मतलब ग्रेटर डिटेल में उन्होंने कवर करा है। बाकी जो टर्म्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट वगैरह, ठीक है, वो सब मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ। दैट अंटिल एंड अनलेस यू नो द स्टार्टिंग एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज, इट विल be very difficult for you to go ahead with the current affairs, or let's say to link the things. TRAI starts the consultations ahead of 5G auction. तो TRAI क्या है, आपको अगर पता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ बिकॉज दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, आपको मैंने पहले बोला GS2 में यू हैव टू कवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी, है ना। जैसे अभी हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टैचुरी, रेगुलेटरी, क्वाजी जुडिशियल, बहुत तरह की बॉडीज़ हैं जिसमें ट्राई इज़ एन एग्जाम्पल। तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें ध्यान देते रहना है ट्राई से रिलेटेड जब कोई मेजर न्यूज़ आती है। तो अब यहाँ जो कि 5G ऑक्शन को लेके बात हो रहा है, तो 5G से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत अलग से पढ़ के रख सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपके साइंस टेक में भी यूज़ हो जाता है। रेस्ट ओके, नॉट मच हियर। देन इज़ जस्ट स्पोर्ट्स कमिंग, तो ऐसा सच कुछ नहीं इसमें अभी देखेंगे। एक्सप्लेनर, नाउ दे आर गिविंग इट इन रियल डिटेल एंड सच गुड टॉपिक्स दे आर कवरिंग, सो इसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। मतलब अभी के टाइम में अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द पेजेस लाइक द फर्स्ट पेज, द वर्ल्ड न्यूज़, द सम ऑफ द नेशनल न्यूज़, इकोनॉमी, उन सब 3-4-5 पेज के अलावा अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल रह रहा है दैट इज़ दिस एक्सप्लेनर पेज ओनली, जहाँ वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस को, अच्छे टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स में दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान काम हो जा रहा है। सो प्लीज़ डू रीड very carefully, and the topic for today here is the governor's role in approving the bill. ठीक है, सो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को उन्होंने आंसर करने की ऑलरेडी कोशिश जो है वो आपके इस केस में करी है। अब जैसे इन्होंने क्या बोला, दैट द तमिलनाडु असेंबली हैज़ वंस अगेन अडॉप्टेड अ बिल दैट वाज अर्लियर रिटर्न्ड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर का क्या रोल है इस होल कॉन्टेक्स्ट में, एंड बिल्स का क्या प्रोसीजर रहता है गवर्नर के केस में, वो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ये पढ़ने के बाद अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं मिलती है, यू कैन ऑल्सो रेफर लक्ष्मीकांत, जहाँ जो गवर्नर चैप्टर है, ठीक है, फॉर द स्टैटिक जो गवर्नर चैप्टर है आप वहाँ देखेंगे और फिर आप वहाँ से रिलेट करेंगे कि गवर्नर्स और बिल्स का कैसे सारा जो है वो रिलेशन रहता है। अगर आपको थोड़ा इसको और एडवांस लेवल पे करना है तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड प्रेसिडेंट इन दिस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रोल जो हैं वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। एंड देन अगेन रिन्यूइंग द इंडो लंका रिलेशंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन, अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो जैसा मैंने बोला कि वो ऑलरेडी एक डेवलपिंग टॉपिक है फॉर द टाइम बिंग, और ये मुझे ऐसा लगता है इस पर चांसेस रह सकते हैं इन दी कमिंग ईयर का मेंस, क्योंकि अभी से वो टॉपिक बिल्डअप हो रहा है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान दे के अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं।
नेक्स्ट इज अबाउट द कोस्टिंग टुवर्ड्स ट्रबल. यहाँ पर चूंकि इशू कम्युनलिज्म का है, ठीक है, जो भी इशू प्रेजेंट, जो भी कर्नाटका रिलेटेड इशू चल रही है, लेकिन चूंकि कम्युनलिज्म का मामला है, कम्युनलिज्म एज GS1 आपका सेपरेट टॉपिक है और एट टाइम्स ऐसे वगैरह में भी हेल्पफुल हो जाती है, इसलिए आप इसमें से पढ़ के सिर्फ क्रक्स निकाल लेंगे. अगर आपको जहाँ पर कुछ ऐसा कंसेप्चुअल लगता है या कुछ अच्छी लाइन लगती है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये आपको एग्जाम ओरिएंटेशन से दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, बट इसको पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आए आप उसको एक्सट्रैक्ट करके यू कैन जस्ट यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग. Rest is, I don't think, as such that important, so you can ignore this. Okay, so here we end the discussion on The Hindu dated February 9th 2022. I'll be seeing you tomorrow with a new video on the new day, that is February 10th 2020. Thank you so much everyone. Please do subscribe to the channel and please help me spread the word. Take care till then. Bye bye.